maximum of 78,000 for 3 kilowatt, and it generates nearly about 300 to 360 units pan India if you consider average. By that, for that, apart from the 78,000 subsidy what we are providing, apart from that, they may have to give around 85,000 rupees they have to borrow from the bank. If at all entirely if they borrow from the bank also, their EMI burden will be 610 rupees. And electricity bill, which regularly they used to get, pan India, we have assessed it, calculated it, surveyed it. On that basis, it is 1,875 electric bill, otherwise what he gets. And 1,875 electricity bill will become zero. 50% of the installations have already become zero out of 10 lakhs. And minus 610, that is the EMI burden, means net monthly benefit of 1,265 rupees, net yearly monthly income. And net yearly income will be the 15,185. I am talking not zero bill, I am talking the income by which rooftop solar of Pradhan Mantri ने जो अनाउंस किया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, इसमें जीरो बिल आएगा. उसके अलावा and we are guaranteeing, and I am also thankful to Honorable Finance Minister, the highest budget has been provided in this budget also. Let me complete. So what I would like to tell, we are offering free electricity for 25 years, not like other government like in Karnataka where they announced 200 units and not even providing 40-50 units. That is the situation in the Karnataka today. They are not able to provide. But we are providing 300 units for 25 years, and after 25 years, he is going to earn. The person who has the family who has installed, the household which has installed 3 kilowatt of the Pradhan Mantri Muft Surya Ghar Bijli Yojana, he will earn the 15 lakh fixed deposit if he every month if he deposit 1,265 in the bank. 15 lakh rupees he will earn at the end of the 25 years with the free electricity. This is what the sustainable model which as Prime Minister has Modi has exhibited not only to our country and to the entire world. And even people from the outside, they are coming here and studying this Pradhan Mantri Muft Surya Ghar Bijli Yojana because it is the most successful and sustainable model not only in the country, in the entire world. धन्यवाद. माननीय श्री अमरपाल मौर्य, लास्ट सप्लीमेंट्री प्लीज. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रकृति केंद्रित विकास की अवधारणा को जो सुदूर किसान और गांव का गरीब है उनसे जोड़ने का जो उनका संकल्प लिया है, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं. और माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले दशक में सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं एवं देश में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? धन्यवाद. Sir, I have already explained how we are providing in PM Kusum, that is for the farmers, and for the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. There are 3 components in PM Kusum and PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, and every state, it is a demand driven. Some of the states, they are doing well, the people there, they are getting benefit, and many states, they are not performing. As far as, if I can quote the example of West Bengal, 25,000 people in West Bengal have applied for the rooftop solar under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, but sadly none of them have been received. They have been connected. They have been connected because ultimately the state government has to provide the net metering. They have to allow the connection through their respective DISCOM. If they do it, immediately, within 15 days, beneficiary account, we will credit the subsidiary amount. Thank you. Now question number 125,
श्रीमती संगीता यादव, श्रीमती संगीता यादव। माननीय मंत्री जी, महोदय, फर्स्ट सप्लीमेंट्री संगीता जी। माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बड़ा विस्तृत आंसर दिया है, और माननीय मोदी जी को भी आभार प्रकट करती हूँ कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से अच्छा काम हो रहा है। सवाल। लेकिन एक मेरा सवाल पहला सप्लीमेंट्री यही है कि जब आयुष में हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहे हैं तो वहाँ दवाइयों का बड़ा संकट हो रहा है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें एलोपैथी की दवा लिख देते हैं। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाह रही हूँ कि क्या जैसे हमारी एलोपैथिक जो दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र जगह जगह बने हुए हैं, ऐसी कोई योजना सरकार की है कि जी आयुष औषधि केंद्र भी जगह जगह खोले जाए? धन्यवाद। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि हमारे आयुष के ज़्यादातर डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपनी सेवाएं वहां पर देते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष की सभी दवाइयाँ सभी जगह पर उतनी उपलब्ध अभी तक नहीं हो पा रही है कि जिससे कि मरीजों को वो दवा खरीदने में भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन हमारा मंत्रालय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयुष के औषधियों की उपलब्धता, सुलभता बढ़ाने और उन्हें किफ़ायती बनाने के लिए निश्चित रूप से हम प्रतिबद्ध हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री से मैं जानना चाहती हूँ कि आयुष मंत्रालय ने हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या साझेदारी की है जिससे भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार हो सके? आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद सदस्य को यहाँ बताना चाहूँगा कि हाल ही हमारे मंत्रालय ने इंडोनेशिया के साथ समझौते के सहित आयुष मंत्रालय ने अभी तक अनुसंधान एवं नवाचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। साथ ही साथ सहयोगात्मक अनुसंधान बढ़ाने के लिए संस्थान से संस्थान स्तर पर 51 समझौता ज्ञापन हमने किए गए हैं। इसी प्रकार विभिन्न देशों में शैक्षणिक पैठ बैठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, मलेशिया सहित 15 देशों में आयुष चेयर भी हमने स्थापित किए हैं, और इसके अलावा 39 देशों में 43 आयुष सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। आदरणीय सभापति जी, हम विश्व स्तर पर आयुष के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। अवश्य ही हमारा आयुष मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। WHO ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का पहला एवं एकमात्र ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित है। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए आयुष वीजा की भी हमने पहल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के 180 देशों से अधिक देशों में हर वर्ष मनाया जाता है। अभी उसको 10 साल पूरे हुए। अभी ये साल हम बड़ी तैयारी करके बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाने का हमारा प्रोग्राम तय हो चुका है। इसी प्रकार आयुर्वेद दिवस पर 150 से अधिक देश में उसको सम्मानित किया गया है, और हमने योगा सर्टिफिकेट कोर्स बोर्ड भी बनाया है कि जिसके माध्यम से ये सर्टिफिकेट लेने वाले युवाओं को हमारे देश में और देश के बाहर भी बड़े पैमाने पर रोजगार वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। ये सारी काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारा आयुष मंत्रालय कर रहा है। धन्यवाद। माननीय श्री त्रिचू शिवा। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, one of the 5 autonomous organizations working under the ministry having the objective of evidence-based research is CCRYN, Central Council for the Research of Yoga and Naturopathy. Whereas the BNYS is not in the system of NCISM. For students who have put in 5.5 years of labor and who have passed out or without recognition, would the ministry consider of including BNYS in NCISM, National Commission for Indian System of Medicine? Thank you. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय,
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जैसा कि सदस्य ने यहाँ पर बताया कि 5 अनुसंधान परिषदें काम करती है, जिसमें केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऐसी ये 5 तरह की अनुसंधान परिषदें काम करते हैं। नेचुरोपैथी के बारे में जो सम्मानीय सदस्य ने यहाँ पर पूछा है कि ये बात सही है कि ये जो नेचुरोपैथी के जो कॉलेज है या शिक्षा पद्धति है तो राज्य के माध्यम से वो चलाई जा रही है, और ये बात ये भी सही है कि अलग अलग राज्यों में जो सिलेबस है वो थोड़ी अलग तरह के है। कुछ राज्य में 5.5 साल का सिलेबस है, कुछ राज्यों में 4 साल का सिलेबस है, और जो 5.5 साल का सिलेबस है वो लोग उनके राज्यों में तो डॉक्टर लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी सदस्य ने चिंता जताई कि बाहर के राज्यों में उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, और जो 4 साल का सिलेबस पूरा करके पढ़ाई कर रहे हैं उनको डॉक्टर लिखने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। निश्चित रूप से जो आपने जो सवाल यहाँ पर पूछा कि नेचुरोपैथी के बारे में सभी रूल रेगुलेशन पूरे देश में एक जैसे होने की आवश्यकता है, और सभी को रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर सभी देश में मिलने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस दिशा में भी हमारा मंत्रालय सोच रहा है, हम इसमें निश्चित रूप से सोचने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। माननीय श्री नीरज डांगी। And through you, I would like to ask the Honorable Minister that given the establishment of Ayush Export Promotion Council, Ayush Axel, to oversee exports of Ayush products and address trade issues, what targets has the government set for Ayush exports by 2047 and what strategies are in place to achieve these targets? Thank you, sir. Thank you. सदस्य ने जो अभी यहाँ पर पूछा नीचे ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, उनको अगर कोई इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो मुझे मिले, मेरे मंत्रालय में मैं उसकी सभी जानकारी देने की कोशिश करूँ। धन्यवाद। माननीय दर्शना सिंह। धन्यवाद उपसभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या आयुष के क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 2014 में जब से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच से आयुष मंत्रालय हमारे देश में स्थापित हुआ, और 2014 में से आयुष विभाग में आयुष में नवाचार, आयुष में संशोधन और आयुष को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम आयुष मंत्रालय के माध्यम से उठाए गए हैं। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 में आयुष विभाग के आयुष मंत्रालय में अपग्रेड होने के बाद से आयुष बाजार के आकार 2015 में आयुष विनिर्माण उद्योग 21,697 करोड़ रुपए था, और वर्ष 2020 के RIS के नवीनतम अध्ययन में आयुष विनिर्माण उद्योग का आकार 1,37,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 7 वर्षों में 6 गुना से ज़्यादा वृद्धि है। इसी तरह RIS के प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि आयुष सेवा क्षेत्र में 1,66,797 करोड़ रुपए का राजस्व भी आयुष के माध्यम से हमारे इसमें हमें मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आयुष में नवाचार संशोधन को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के कदम हमारे मंत्रालय के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 ऑनरेबल श्री ए रहीम। क्वेश्चन नंबर 126। माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पर। हर्ष मल्होत्रा जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, the answer is very evasive, sir.
Sir, according to the answer given by the Honorable Minister, the 1,119 cases resolved under the IBC have led to a recovery of 3.58 lakh crore for creditors. But my question, this is the recovered amount. But my actual question was about the haircut amount. Sir, my question is, what is the total haircut amount in these accounts? I want to know particularly in this regard about the haircut amount. थैंक यू माननीय मंत्री जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वो कोड है जिसको मोदी जी के विजन से कंपनीज की रिवाइवल के लिए और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इसको किया गया था। क्योंकि आपके आपका उत्तर दे रहा हूं, ये जो प्रोसेस है ये रिकवरी मैकेनिज्म है, रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, ये बेसिकली रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है और ये मार्केट ड्रिवन प्रोसेस है। जो उत्तर हमने सदन को दिया है वो 1119 कंपनीज का जिनका रेजोल्यूशन हुआ है। क्वेश्चन और इज ओवर, क्वेश्चन और इज ओवर नाउ प्लीज। Now we move to discussion on the working of the Ministry of Education. Mani Shri Digvijay Singh to raise the discussion on the working of the Ministry of Education. Please, Mani Digvijay Singh, please. अब आपको बोलना है। No sir, I have not given floor. आपको बोले नहीं तो दूसरे को मैं बुलाऊंगा। I am not. No. Please, माननीय दिग्विजय सिंह. Otherwise, I will call other speakers. I will call other people. Please. No, not allowed. आप एक बार already आ चुके हैं वेल में. I am warning you. Please, Mr. Tiruchi Shiva, go back to your seats. Please. माननीय दिग्विजय सिंह. Please continue. माननीय दिग्विजय सिंह जी, please continue. Otherwise, no, I am not going. Please. I'll call other speakers. I'll call. Please. How can I? आप बोले आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. Do not come in the way. If you, I will name you now. No, I request you to go back. Please, no. माननीय दिग्विजय सिंह. आप बोले. माननीय दिग्विजय क्या बोले? सर मैं क्या बोलूंगा? So I will call the other speaker now. ये आप सब लोगों ने तय किया। Sir, you have to bring the house in order. No, how can I speak? It's not my responsibility. Please. Sir, I want to speak. Please. Sir, I want to speak. House order. Sir, Tiwari ji. bring the house in order. Sir, I am prepared. आप members house order नहीं। Sir, how can I, sir? आप बोले। आप बोले। आप बोले। प्लीज आप बोले। माननीय दिग्विजय जी प्लीज आप बोले। तब बोलेंगे। प्लीज। सर मेरे एलओपी मांग रहे सर। प्लीज एलओपी साहब को मैं सुबह मौका दे चुका हूं बोलने के लिए। प्लीज नहीं, ऑलरेडी सुबह में बोल चुके हैं माननीय एलओपी। एक मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ को अनुरोध कर रहा हूँ माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको प्लीज सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप सुनिए प्लीज सर, नो टेल, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो देखिए प्लीज क्या है आज सर माननीय एलओपी लीडर ऑफ हाउस प्लीज। सर आप साहब सर
बहुत ही मैं देता हूँ, प्लीज लेट हिम गो प्लीज। सर मैं आपको देता हूँ मौका, इसके बाद प्लीज बोले आप। सर बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द LOP। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी LOP को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। प्लीज मिस्टर तिरचुशा, प्लीज मैं अलाउ करूंगा माननीय LOP कि आप अपनी अपनी सीटों पे जाएं प्लीज। अपनी सीटों पे प्लीज टेक योर सीट्स। दिस इज नॉट योर सीट मिस्टर। आई एम नॉट, गो बैक टू योर सीट। नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट। माननीय LOP बोलना चाहते हैं। सर मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बात से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते। सर मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड कर। आई एम नॉट अलाउइंग दैट, प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन। पार्टी के MP किया है कर्नाटक में। माननीय लीडर ऑफ हाउस प्लीज। अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपंज होना चाहिए। विल एग्जामिन इट। थैंक यू। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप बोले। माननीय दिग्विजय सिंह। सर, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आभारी हूँ आपका जो आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। भारत 1947 में आज़ादी हमें मिली और तब साक्षरता कितनी थी और उच्च कोटि के शिक्षण संस्थाएं कितनी थी ये सर्वविदित है। लेकिन पिछले 78 वर्षों में जिस प्रकार से हमारे देश में साक्षरता बढ़ी है, शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ी है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है।
विज्ञान और प्रौद्योगिक तकनीक को महत्व दिया गया और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस स्थापित हुए। मेरे मत से नीति में एक्सेस यानी पहुंच और एक्सेलेंस यानी गुणवत्ता आवश्यक है। पहुंच ज्योग्राफिकली भी और फाइनेंशियली भी गरीबों के लिए, एक्सेलेंस अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अब पिछले 11 वर्षों में क्या हुआ उस पर हमें चर्चा करनी है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको मैं कोट करना चाहता हूं। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंगेज्ड, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged in the Constitution. माननीय सभापति जी, क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन में इस पॉलिसी स्टेटमेंट का पालन हो रहा है, उस पर हमें देखना पड़ेगा। कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट जो थी वो ड्राफ्ट कुछ और था और जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी घोषित की वो कुछ और थी। 1986 में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, मैं लोकसभा का सदस्य था उस समय। उस पर लोकसभा में चर्चा हुई थी, सदन में चर्चा हुई थी, लेकिन 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कोई चर्चा सदन में नहीं हुई। अब बात यही है, क्या गरीबों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्सेस है, पहुंच है और एक्सीलेंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यह विषय है। बात यही है कि क्या नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा महंगी होगी या नहीं होगी? क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए उच्च कोटि के शिक्षकों का चयन होगा या नहीं होगा? क्या उच्च कोटि का प्रशिक्षण उनका होगा कि नहीं होगा? क्या उच्च कोटि की शिक्षा के लिए वाइस चांसलर्स व प्रोफेसर्स का चयन ठीक होगा कि नहीं होगा? इन सब बातों को लेकर हमें इस पर चर्चा करनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो यूनिवर्सल एक्सेस का उद्देश्य बताया है, मैं उससे सहमत हूं और इसीलिए आंगनवाड़ी यानी कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक बच्चों के लिए यूनिवर्सल एक्सेस की नई शिक्षा पॉलिसी में उसका समावेश किया। मैं उसके पक्षधर हूं, लेकिन क्या विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल कल्याण व शिक्षा विभाग का जो कन्वर्जेंस होना चाहिए प्री प्राइमरी लिटरेसी में और बाद में, उस पर आज भी कंफ्यूजन है। 5 साल हो गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। मैं कहना चाहता हूं कि बाल वाटिका में बच्चों को मिड डे मील पीएम पोषण से दिलाया जाता है जो एजुकेशन विभाग में है, और आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी योजना से मिलता है। नेशनल गाइडलाइन ऑफ फंडिंग में असमानता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी व्यवस्था अलग है। कहने का मेरा मतलब है कि अभी भी शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास ने जो समन्वय करना चाहिए था, होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। मेरा ये सुझाव है माननीय मंत्री जी, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें एक मिशन मोड में इसको डालें और उस मिशन मोड के अंदर इसलिए डालें क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और इस देश में 52% जो गर्भवती महिलाएं हैं वो एनेमिक हैं। 39% बच्चे आज कुपोषित हैं। इन सबको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इस प्रकार से फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की घोषणा की गई, हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने कहा था रीडिंग फ्लुएंसी को हम निरंतर रखेंगे, लेकिन उसको माननीय शिक्षा मंत्री जी आपने उसको छोड़ दिया। अब मैं आता हूं एक्सेस यानी कि पहुंच। इसमें नए एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है, यानी कि क्लस्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक जगह उनको समझ को डाला जाएगा। इसके कारण कई स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन का जो प्रोविजन है, जो कि कानून है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा प्राथमिक शाला नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि स्कूल एजुकेशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जब हमने पूछा उनसे, लेकिन एक उत्तर में उन्होंने बताया कि इस देश में 2014 से लेकर 2024 के बीच में 90,000 शासकीय स्कूल इस देश में बंद कर दिए गए। अब जो स्कूल बंद किए गए हैं उन तो प्लीज सर, आई एम नॉट यील्डिंग, सर, आई एम नॉट यील्डिंग, सर, आई एम नॉट यील्डिंग, लेट मी फिनिश। माननीय तिवारी जी हमारी समिति के सदस्य हैं, उसमें हम लोगों की इसमें चर्चा हुई है, उनकी सहमति थी उसके अंदर। मैं इसी के बाद कहना चाहता हूं कि जहां ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बड़ा है, हम स्वीकार करते हैं, जीईआर बड़ा है, वहीं ड्रॉप आउट रेट कम हुई है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि जब जीईआर बड़ा है और ड्रॉप आउट रेट कम हुई है तो छात्रों की संख्या बढ़ी है। लेकिन छात्रों की संख्या जब बढ़ी है तो क्या शिक्षकों के पद बढ़े? क्या उसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट बढ़ा है? बजट नहीं बढ़ पाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यही नहीं है, मध्य प्रदेश का मैं आपसे कहना चाहता हूं, 30,000 स्कूल बंद किए गए और साथ में अब आप बताइए जो गरीबों के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं वो कहां जाएंगे? वो निराश होकर उन्हें निजी स्कूलों में जाना पड़ेगा। और ये अब बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं 2014 के बाद जो फीस लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एक शंका थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गरीबों के लिए महंगी होगी और साथ में शिक्षा के उच्च शिक्षा में भी कई कारण जो मैं बताऊंगा महंगा होगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आरटीई में 3 साल से 18 साल, इसमें एनईपी में 3 साल से 18 साल तक का संकेत किया गया है और ड्राफ्ट पॉलिसी में भी ऐसा है। इसलिए अनुरोध करूंगा कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो बच्चों का जो 6 साल से 14 साल तक का प्रावधान है उसे बढ़ाकर 3 साल से 18 साल तक किया जाए। मेरा ये भी आपसे प्रार्थना है कि हमें जो बच्चे स्किल दूसरे उसमें 8वीं कक्षा के बाद हमें इसका थोड़ा सा सर्वेक्षण करना चाहिए, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि जिस बच्चे में जो हुनर है उसकी तरफ उसे स्किल डेवलपमेंट की तरफ लाना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी जितने भी हमारे मिशन के कार्यक्रम हैं वो 18 साल के बच्चों के बाद है, इसलिए उसमें भी परिवर्तन करके उन्हें लगभग 14 साल के बाद ही स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की आपत्ति है और दुख भी है कि ये देश जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण है, जहां अनेकता में एकता का एक उदाहरण है, वहां एनसीईआरटी की कुछ किताबों में सांप्रदायिकता का संकेत नजर आते हैं। यही नहीं है, इतिहास को भी नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास है। गलत तरीके से महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ उसको सिलेबस से निकाल दिया गया। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के जो विषय पर उसको निकाल दिया गया और यहां तक कि जो एनसीईआरटी किताबों में
संविधान का प्रियम्बल की बाध्यता थी, वो तो धन्यवाद दूंगा मैं हमारे विपक्ष के नेताजी को, जिन्होंने कि इस बात को बताया यहाँ, उसकी वजह से आप मजबूरी में एनसीईआरटी ने स्वीकार किया है कि हम प्रियम्बल का समावेश हर एनसीईआरटी किताब में करेंगे। उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस हमारे केंद्र सरकार के जो विद्यालय चलते हैं, नेहरू नवोदय विद्यालय, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, हर जगह इसकी प्रशंसा है, कम फीस है और उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने की दी जाती है। लेकिन उसके अंदर अब नई बात आ गई है कि पीएमसी स्कूल नए आ गए हैं और इन पीएमसी स्कूल में उन्हें समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में माननीय सभापति महोदय 7,414 पद खाली हैं नवोदय विद्यालय में और 6,734 पद पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अपॉइंट हैं। इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय में और पहला मैंने विषय जो था केंद्रीय विद्यालय में थे, केंद्रीय विद्यालय में 7,414 पद खाली हैं और 6,734 पद कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। नवोदय विद्यालय में भी 4,022 पद खाली हैं और उसमें 3,233 पद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 70,000 पद खाली हैं, 70,000। बात वही है, क्या कारण है, क्या नीति है माननीय मंत्री जी कि आप नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनके निष्पक्ष तौर पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि ये चाहते हैं कि उनकी विचारधारा से प्रभावित लोगों की नियुक्ति वो पिछले दरवाजे से कॉन्ट्रैक्ट रूप में करें, ये उसकी नियत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रशिक्षण पर महत्व दिया गया है एनईपी में, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को आप कोई ट्रेनिंग देंगे? और कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी तो कितने दिन की ट्रेनिंग आप देंगे और कब तक वो काम करेंगे? इसका कोई उल्लेख नहीं है। माननीय पीएमसी स्कूल का मैंने उल्लेख किया। पीएमसी स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए थे और राज्य सरकारों के को दिए जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसमें नवोदय विद्यालय के 661 में से 621 उसमें शामिल कर लिए और केंद्रीय विद्यालय के 1256 में से 869 शामिल कर लिए। इसका क्या औचित्य था माननीय सभापति महोदय? नवोदय विद्यालयों की मांग बढ़ रही है। अभी ये नीति आपकी थी कि नवोदय विद्यालय जो हैं हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। अब पूरे देश में ऐसे भी जिले हैं जहां एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और ऐसे भी जिले हैं जहां 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसलिए इसको जिले के आधार पर ना होकर जनसंख्या के आधार पर आप इसकी नीति बनाएं। अभी आज जो हालात हैं उसमें लगभग 21 लाख की जनसंख्या पर एक नवोदय विद्यालय है। मेरा ये सुझाव है उसे 21 लाख से घटाकर 15 लाख की जनसंख्या के आधार पर और ज्योग्राफिकली उसको देखकर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए, क्योंकि नवोदय विद्यालय की मांग है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, जिन लोगों ने, जिन प्रांतों ने पीएम श्री के समझौते पर दस्तखत नहीं किए, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जिन प्रांतों ने पीएम श्री के स्कूल चालू करने पर समझौता नहीं किया, उनका समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोक दिया गया। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है और जिसमें कि बंगाल के 1,000 करोड़ रोक दिए गए, केरल के 859 करोड़ रुपए रोक दिए गए और तमिलनाडु के 2,152 करोड़ रुपए रोक दिए गए। ये क्या कारण है माननीय मंत्री जी? ये आप संविधान की कॉन्करेंट जो अधिकार है राज्यों का, उसका हनन कर रहे हैं, इसलिए आप उसको तत्काल उनके पैसा रिलीज करिए। अब मैं आता हूं हायर एजुकेशन पे माननीय सभापति जी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी 5,410 पद खाली हैं, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है। अब आप बताइए, ये जाने माने तरीके से अपने लोगों को बैकडोर से एंट्री कराने का ये कुटिल योजना है, प्रयास है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं
कि क्या इससे हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को उनकी नियुक्तियों का हनन नहीं हो रहा है? क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए। नियुक्तियां तत्काल करें ताकि एससी, एसटी, ओबीसी के जो हमारे छात्र लोग हैं उनको उसमें मौका मिले। आईआईटी फैकल्टी में माननीय सभापति महोदय, शेड्यूल्ड ट्राइब से उनके अधिकार जितना है उसका 1%, केवल 1% आदिवासी फैकल्टी में है और केवल 5% अनुसूचित जाति का है और केवल 10% ओबीसी का है। यानी कि हमारे कानून का भी उल्लंघन और संवैधानिक जो प्रावधान उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों के लिए दिसंबर 2024 तक 10 पूर्णकालिक वाइस चांसलर्स के पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री जी, आपको नियुक्त करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, फिर ये 10 पद क्यों रिक्त कर रखे गए? डायरेक्टर एडवांस स्टडीज का पद अगस्त 2021 से रिक्त है। बीएचयू जो कि वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र का एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, ऐतिहासिक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कायम किया था। वहां के एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिफंक्ट है। इसलिए डिफंक्ट है क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ने वहां के जो सदस्यों का मनोनयन करना वो नहीं हो पा रहा है। और उसमें क्या दिक्कत है? आपको मनोनयन करिए ताकि वहां पर वो काम हो सके। इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि वाइस चांसलर को इमरजेंसी पावर्स के अंतर्गत अधिकार दिए जाएं कि जो उनको करना करे, वो किसी के प्रति जवाबदार नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय, ये भी एक बात है कि हम लोग इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस, प्रोमिनेंस, उसमें भी हम लोग आज समझौता कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आज विश्व में और देश में सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस के लिए प्राइम इंस्टीट्यूशन है। वहां पर भी कौन सा वाइस चांसलर नियुक्त होता है? जो आईआईटी का प्रोफेसर है, टेक्निकल, उसको वहां अपॉइंट किया जाता है। क्या आपको ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस में कोई योग्य प्रोफेसर नहीं मिले जो कि वहां नियुक्त किए जा सके? यही नहीं है, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने, जबकि आईआईटी जेएनयू के बगल में है, वहां उन्होंने इंजीनियरिंग की फैकल्टी चालू कर दी, मैनेजमेंट की फैकल्टी चालू कर दी। अब आप समझिए कि जो देश में और विश्व में सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेजेस के लिए प्रतिष्ठित है, वहां आपने टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टडीज चालू कर दी। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं किस प्रकार से हायर एजुकेशन में और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भ्रष्टाचार पनप रहा है। नाक NAAC का ब्राइबरी स्कैंडल सर्वविदित है। जो व्यक्ति उसमें, जिसको जेल हुई, जो जमानत पे है, उसकी नियुक्ति किसने की थी? उसकी नियुक्ति तत्कालीन वाइस चांसलर जेएनयू, जो अब आपने उनको प्रमोट कर कर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया, उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी। और नियुक्ति हो जाने के बाद डायरेक्टर मैनेजमेंट स्टडीज की नियुक्ति की गई और डायरेक्टर मैनेजमेंट स्टडीज की नियुक्ति वहां हो जाने के बाद जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन बने वहां के वाइस चांसलर, तो उन्होंने उन्हीं महाशय को नैक में अपॉइंटमेंट दे दिया, क्योंकि नैक के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन काउंसिल। यानी कि कुछ समझौता या समन्वय या जो भी पार्टनरशिप हो, वो उन दोनों में नजर आती है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसी प्रकार मध्य प्रदेश के 3 मेरे पास केसेस ऐसे हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाइस चांसलर सुनील कुमार ने 19 करोड़ 48 लाख गवर्नमेंट अकाउंट से अपने प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, पकड़े गए। उसी प्रकार से जीवाजी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉक्टर अविनाश तिवारी, और वो उन्होंने
एक फेक कॉलेज को डिग्री दे दी, फेक कॉलेज में डिग्री दे दी उन्होंने। जब वहां के गवर्नर को मालूम पड़ा तो उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और उस पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, जिसके चेयरमैन उपराष्ट्रपति जी हैं, वहां करप्शन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का एम्बेजलमेंट में 2,65,00,000 का भ्रष्टाचार करने का उन पर मुकदमा कायम हुआ और मुकदमा कायम होने के बाद वो वहां से भागे और उसके बाद उन्हें हरियाणा का, वहां पर उन्हें स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया। माननीय सभापति जी, IITs इस देश में स्थापित किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनके कारण आज पूरे विश्व में नाम है भारत के इंजीनियर्स का। IIMs के माध्यम से हमारे नाम है हमारे भारत का, जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दीज आर दी टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई है जो कहते हैं कि IIT डायरेक्टर मंडी, वो कहते हैं कि जो अब नड्डा जी आप तो इसको समझ लीजिए कि वहाँ IIT का डायरेक्टर मंडी का कहता है क्या यहाँ पर जो भूमि स्खलन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लोग मीट खाते हैं। अब बताइए, मीट खाने वाला व्यक्ति जो है उसकी वजह से वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आपके राज्य प्रांत में इरोजन हो रहा है। अब आप समझ लीजिए, इसी के साथ साथ और भी बातें थी। एक NIT के प्रोफेसर दक्षिण भारत के, उन्होंने कह दिया कि नाथूराम गोडसे ये राष्ट्रभक्त थे। ये विचारधारा किस प्रकार से विचारधारा से प्रभावित होकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है, हमें उस बात की आपत्ति है। मैं आपसे उदाहरण 2 का और देना चाहता हूं। इसी में NCERT में इस बार कल लगभग 20% कंसेशन पे टेक्स्ट बुक बांटी गई। कारण यह है कि वहां पर उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि निष्पक्षता से कागज की खरीद होना चाहिए। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस भाव में कागज खरीदा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि पिछले 5 सालों में क्या रेट से कागज खरीदा गया। आज तक उसका मुझे उत्तर नहीं मिला है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी मिली है कि भारी भ्रष्टाचार खरीद में होता है। मैं इसी के साथ साथ 2 ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण है एक ऑटोनोमस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो देश में विख्यात है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि 5 साल से वहां कार्यरत हैं, उनको 5 साल के बाद नियुक्ति के अधिकार उनको नहीं दे रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। यहां से वाइस चांसलर उन्हें नियुक्ति के अधिकार नहीं दे रही है, प्रमोशन रोक दिए गए हैं। वहां पर लगभग 100 फैकल्टी मेंबर्स के पोस्ट वेकेंट हैं। कहां पर? जो देश का सबसे सर्वमान्य, मैं तो हरदीप पुरी साहब से कहूंगा कि आप जरा इसको देखिए कि सेंट स्टीफन के साथ क्या हो रहा है। हिंदू कॉलेज के, वो हिंदू कॉलेज के हो तो आपकी राइवलरी भले हो सकती है सेंट स्टीफन के साथ। तो बस इसमें निवेदन करता हूं कि इसमें 100 पद खाली। इसी प्रकार से JNU के अंदर भी, जो कि देश का एक प्रमाणित और विख्यात इंस्टीट्यूशन है, वहाँ 150 फैकल्टी मेंबर्स के प्रमोशन केस पेंडिंग है। 30 फैकल्टी एलिजिबल एसोसिएट प्रोफेसर अब भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। 30 फैकल्टी एलिजिबल प्रोफेसरशिप के लोग अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। 50 फैकल्टी एलिजिबल फॉर प्रोफेसरशिप के वो अभी भी एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे लोग हैं कि उनके छात्र वो उनके सीनियर हो गए। ये हालत है JNU की, क्योंकि JNU एक ऐसी संस्था है जो गरीब परिवार के बच्चों को उच्च श्रेणी की शिक्षा देती है।
जिसके साथ ये समझौता किया गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पहले ग्रांट दिया करता था, लोन नहीं देता था। अब नीति परिवर्तित की गई है और हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अब कोई ग्रांट नहीं देगा, हैफा के माध्यम से आप लोन लीजिए और लोन लीजिए यानी कि लोन पटाइए। अब लोन पटाने के लिए उनको तो फीस बढ़ानी पड़ेगी, फीस जब बढ़ानी पड़ेगी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो फीस बढ़ाएंगी और सरकारी यूनिवर्सिटीज को भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को जो अधिकार था ग्रांट देने का वो कायम रखना चाहिए। अब स्कॉलरशिप्स में भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप पेमेंट्स जो कि मिलना चाहिए वो महीनों तक उनको नहीं मिल पाते हैं। नेशनल लिविंग साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कि बजट के कमी के कारण बंद कर दी गई है। NSTSC जो कि स्कॉलरशिप और ग्रेड 9 के बच्चों को प्रोत्साहन देता था वो भी बंद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि लॉन्च हुई थी उसको भी 2020 से समाप्त कर दिया गया। अब माननीय सभापति महोदय, कभी भी कोई टैक्स सरकारी यूनिवर्सिटीज पे नहीं लगता था। अब जीएसटी आने के बाद सरकारी यूनिवर्सिटी से भी जीएसटी ली जा रही है। सरकारी 18% शिक्षा बेचने की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा ये सुझाव है कि टेक्स्ट बुक और रिसर्च के जो भी इक्विपमेंट और सामान है और सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जीएसटी और सारे टैक्सेस माफ होना चाहिए, हम लोग डिमांड करते हैं। इस तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले एक ज़माने में जितना रिसर्च पर खर्च होता था वो रिसर्च धीरे धीरे कम होता जा रहा है।